Hi students, I'm J.K. Gupta. Today we are going to record the second video of dimension analysis. In last video, we deal with this kind of numericals, P minus A by V into V minus B equal to RT, where we have to find the dimension of A and B. Here we use the concept that when addition performed, the dimension of this is equal to the dimension of that. That's why the dimension of P is equal to the dimension of this, dimension of V is equal to the dimension of B, etc. Where P is pressure, A is unknown, V is volume. We can find the dimension of A and B, and after that we can find the dimension A into B, A by B, individually A and B. Using the dimension analysis, we'll rectify the equation whether it is right or wrong. मतलब डायमेंशन जानने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कोई भी इक्वेशन ठीक है कि नहीं. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर LG. First of all, we are going to verify that this equation is correct or wrong. So what should we do? The dimension of the left hand side LHS is time. Time का dimension क्या होता है? T. And dimension of the right hand side should be equal. तो RHS L to the power root over LG, where G is gravitational acceleration, L T to the power minus 2, and this root means whole to the power half. So L to the power half, G means gravity, T to the power minus 2 whole to the power half. If we open the bracket, L to the power half, L to the power half, T to the power minus 1. Now the ultimate result will be L to the power 1, T to the power minus 1. It is clear that the left hand side is not equal to the right hand side. So there is certain error in the equation. तो अब बात ये है, if we have provided by this kind of equation, we can modify the equation. मतलब अगर ये गलती equation दिया गया है, we can modify the equation. कैसे modify होगा? देखो इसमें क्या क्या अगर गलती equation है, इसमें से भी क्या information we can extract. That this is a time period. Time period of what? थोड़ा जानने के लिए मैं बता देता हूँ. Time period of the pendulum. Pendulum ऐसे करके to and fro motion करता है ना? That is the time period. It depends on the length of the bob. ऐसे करके suspended है. This is the length. This is G. G is gravity acting downwards. अच्छा, तो ये चीज समझ में आ रहा है. Time period depends on length and gravity. तो ये सब सम कैसे किया जाता है? तो हम लोग क्या बताएंगे? Time period related to or depends on proportional sign. Depends physics में कैसे होता है? Directly or inversely. L to the power A, G to the power B. यहां पर पावर हाफ है, इसमें भी गलती हो सकता है, तो हम लोग पावर कुछ ना कुछ पकड़ लिए. अब ये रिलेशन को अगर हटा देंगे तब हम लोग को कांस्टेंट आएगा. ये कांस्टेंट कितने होना चाहिए? 2 पाई. कांस्टेंट में कुछ एरर नहीं होता है डायमेंशनली. दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस एज 2 पाई. अब टाइम का डायमेंशन, कंपेयरिंग द डायमेंशन, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टाइम टी. अब 2 पाई का डायमेंशन, इट इज डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज कांस्टेंट. L to the power A, L T to the power minus 2, फिर B मल्टीप्लाई करना है, इज द डायमेंशन. तो डायमेंशन T इक्वल टू L टू द पावर A प्लस B T टू द पावर माइनस 2B. तो मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल चीज है. इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, देन द पावर ऑफ टाइम शुड बी इक्वल बोथ साइड एंड द पावर ऑफ लेंथ शुड बी इक्वल इन बोथ साइड्स. So if the power are equal, then A plus B should be equal to 0. A plus B equal to 0. Next, minus 2B is equal to 1. Minus 2B equal to 1. That is B equal to minus 2B equal to 1 implies B equal to minus half. Okay. If we substitute the value of B in this equation, what we will get? The value of A. यहाँ पर minus half, उधर जाएगा तो plus half. That means we get the values of A. Now we can simply put the value
अब ये इक्वेशन को फिर लिखेंगे, यहां पर हम लोग डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज हाफ एंड द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस हाफ. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? तो अगर ये हाफ है तो रूट ओवर आएगा, और माइनस है तो डिनोमिनेटर में आएगा, इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी होल टू द पावर हाफ. ये हाफ रख सकते हो, या हाफ कर जगह में वी कैन रिप्लेस इट बाई द रूट. तो गलती क्या था, यहां पर एक डिवाइड होना चाहिए था. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस न्यूमेरिकल? तो जो साइंटिस्ट ये टाइम पीरियड निकालने का कोशिश कर रहा था, वो ने ये बोला ये टाइम पीरियड, मतलब इसको पकड़ के अगर छोड़ दे, ऐसे करके ये टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा, एट दैट टाइम उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यहां पे रहने वाला क्वांटिटी. चलो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोग वो साइंटिस्ट होते जो ये टाइम पीरियड निकालने वाला था, तो क्या करते? तो हम लोग क्या बोलते, द टाइम पीरियड अगर निकालना है तो मुझे ये दिख रहा है, दिस बॉब शुड हैव सर्टेन मास एंड इट विल एक्ट विद द ग्रेविटी, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. अगर मैं t इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी अंडर रूट ये नहीं जानता, तो मैं क्या बताऊंगा? दैट मीन्स द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास टू दी पावर ए. कितना पावर होगा मुझे मालूम नहीं है. यहां पर 3 क्वांटिटीज एल जी एन एम, हम लोग के हिसाब से मास रहना चाहिए था चलो बी एल टू दी पावर बी एंड जी टू दी पावर सी, ये तीनों क्वांटिटी होना चाहिए था. इफ द प्रीवियस इक्वेशन इज रॉन्ग, देन यहां पर मास का इंटरप्रिटेशन रहेगा. अगर हम लोग एम कंसीडर ज्यादा कर रहे हैं, मतलब अगर एम का जरूरत नहीं है, तो क्या होना चाहिए था? ए का वैल्यू कितना हो जाए? 0. तो अगर हम लोग का कैलकुलेशन 0 ला देता है, तो फाइनली हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन को बना सकते हैं. नाउ टी, डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी, और ग्रेविटी का एल टू द पावर सी टी टू द पावर माइनस 2c. एक बार में c मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ बोथ साइड शुड बी इक्वल. यहां पर देखो t खाली है तो m टू दी पावर 0 एंड l टू दी पावर 0. सो मास का पावर इक्वल होना चाहिए. देखो क्या आ गया, m टू दी पावर 0. दैट मीन्स हम लोग को दिखाई जा रहा है l, g और m 3 क्वांटिटीज आर देयर, बट द यूजफुल क्वांटिटीज आर l एंड g. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई बॉब छोटा है बड़ा है, उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा इफ द लेंथ ऑफ द बॉब इज फिक्स्ड. समझ में आया ना? तो ऐसा तुम्हारे घर में एक छोटा घड़ी है, उसमें पेंडुलम है, वो तो 1 सेकंड का टाइम पीरियड दिखाएगा. अगर मेरे घर में बहुत बड़ा एक पेंडुलम है, वो 1 सेकंड का ही टाइम पीरियड दिखाएगा. लेकिन वो दोनों का मास, बॉब का मास डिफरेंट हो सकता है. सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन m. तो कहां से पता चला? m का पावर 0 हो गया. अगर 0 कर देंगे, m विल कन्वर्ट इनटू m टू द पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1. अब फिर क्या करेंगे? b प्लस c इक्वल टू 0 एंड माइनस 2c इक्वल टू 1, क्योंकि t का पावर 1 है. तो वहां से फिर आ गया ना माइनस हाफ. अगर b का वैल्यू हाफ, यहां पर वैल्यू बैठाएंगे तो हाफ माइनस हाफ. इससे क्या मालूम चला? अगर मैं अगर कोई गलत क्वांटिटी पकड़ लिया, वो ओरिजिनल इक्वेशन में भी नहीं रहेगा. दैट मीन्स देखो, अगर आपको किसी भी चीज का इक्वेशन निकालना है, आपको खाली ये जानना है वो सिस्टम में क्या क्या मेन क्वांटिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करवा दो सीधा. जैसे हम लोग यहां पर देखे एल, जी और एम देखे, तो एल डिपेंड करवा दिए, ए, बी और बी का वैल्यू, ए, बी और सी पावर का वैल्यू खाली निकाले. अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है मतलब वो क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता. तो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग सम वाज यूज्ड बाय द साइंटिस्ट. और ये आपको मिलेगा फिजिक्स में, स्टोक्स लॉ. वो बोलेगा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बोल के इक्वेशन बना देगा. तो टेंशन मत लो, ये सब इक्वेशन मजेदार है. बाय कैलकुलेटिंग द पावर वी कैन फाइंड द इक्वेशन. चलो ऐसे ही, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. चलो हम लोग को कुछ मालूम नहीं व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी. चलो हम लोग को मालूम ही नहीं है व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. देखो यहां पर डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग मेन फोकस रखेंगे वो चीज है क्या. क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या?
कुछ वेलोसिटी। अब क्रिटिकल है क्यों है इतना मालूम नहीं करना है, खाली आपको सिस्टम में यूज होने वाला क्वांटिटी अगर मालूम है तो फाइन, अगर नहीं मालूम है तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू यूज दैट क्वांटिटी एंड कन्वर्ट इनटू अ इक्वेशन। द ट्रिक इज सिंपल, सब्जेक्ट को पकड़ो। क्या सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट? जैसे वी आर गोइंग टू फाइंड द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड वाज द सब्जेक्ट, और टाइम पीरियड के ऊपर पावर नहीं दिए थे। पावर किसके ऊपर दिए थे? टाइम पीरियड, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए बी सी पावर देती है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं क्रिटिकल वेलोसिटी को निकालना चाह रहा हूं तो वी हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज द सब्जेक्ट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन, अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, अगर कोई बॉडी को अगर आप पानी में फेंक दिए, पत्थर को पानी में फेंक दिए, उसका वेलोसिटी सोचो, बहुत ओशन में फेंक दिए, वो नीचे आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब वो चीज हनी में फेंक दिए, वो बहुत धीरे 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 नीचे आएगा। दैट मीन्स बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ लिक्विड वी कैन गेट डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, अच्छा इसको थोड़ा देर के लिए और थोड़ा समझो, ये क्यों हुआ? वाटर में कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी नीचे आ गया एंड इन हनी द ऑब्जेक्ट गेट सफिशिएंट टाइम टू रीच द डाउनवर्ड्स, और डेप्थ में जाने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल गया। तो इसमें क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोले थे लास्ट वीडियो में? इफ यू डीप आवर फिंगर्स इन वाटर, फील द सेंसेशन, एंड आफ्टर द डीप द फिंगर इन हनी एंड फील द सेंसेशन, यू विल कम अक्रॉस दैट in honey there are friction between the layers, that is called the viscosity. वाटर में भी होता है, बहुत लो होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिक्विड, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब अगर बड़ा पत्थर फेंक दिए, छोटा पत्थर फेंक दिए, देयर विल बी अ डिफरेंस इन वेलोसिटी, दैट मीन्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड कंसीडर दैट द डेंसिटी, चलो डेंसिटी ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब ये क्वांटिटी अगर लिया गया है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। दैट मीन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो डायमेंशन ऑफ v इज L_t to the power -1, L to the power -1 इज इक्वल टू ईटा। ईटा क्या होता है? m_L_t -1 होल टू द पावर a, मास टू द पावर b, रो m_L to the power -3 whole to the power c. If we multiply, if we open the bracket, a will get multiplied. So what will be the final outcome? Multiply. If we multiply with c, m to the power c, 3c. Done. अब देखो, m to the power a plus c, l to the power -a -3c, t to the power -a. So it is clear that the dimension, power of t should be equal to -a equal to -1, therefore a equal to 1. Again m to the power, यहाँ पर m नहीं है, m to the power 0, a plus c equal to 0, a plus c equal to 0. If you substitute the value here, a के जगह में 1 लिखेंगे, 1 को उधर लेके जाएंगे, तो c equal to -1. Now if you get the value, wait, m to the power a plus b, यहां पर गलती हो गया, तो the value of b is 1, अब l का 1 से इक्वल होगा -a -3c इक्वल टू 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1? दिस इज -1, उधर जाएगा तो +2, -3c इक्वल टू 1 + 1, c equal to 2/3 -2/3. If you substitute the power with the obtained value, this and that, we'll get the relation. That means a का पावर कितना है? 1 है, b का पावर कितना है? -1 है, c का पावर कितना है? -2/3. अगर ये इक्वेशन हटा देंगे, there should be a constant k. So in this way we can construct the equation of any physical quantity. तो ये चीज नहीं है, अगर मैं यहां पर डिपेंडेंस क्वांटिटी को चेंज करूं तो द फॉर्मूला विल बी गेट चेंज, मतलब देयर विल बी सेवरल एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी
and if we change or switch the dependent quantity, obviously the power of A, B and C will be changed. जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे चेंज होगा, क्योंकि जैसे यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिए उसका M, L और T का जो पावर है, अगर यहां पर प्रेशर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, तो प्रेशर का क्या होता है M L टू द -1 T टू द -2। तो जब A मल्टीप्लाई होता तो देखो डिफरेंट डिफरेंट पावर अरेंज हो जाता ना। तो इफ वी चेंज द क्वांटिटी, द एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज। अगर मैं डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी को फंडामेंटल यूनिट के जैसा ट्रीट करूं, फंडामेंटल यूनिट्स के जैसा ट्रीट करो, दैट मीन्स फॉर दिस डिस्कशन वी आर नॉट कंसिडरिंग एम एल टी आर द फंडामेंटल यूनिट्स। अगर मेरा फंडामेंटल यूनिट्स ये हो गया, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ इंपल्स? व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ इंपल्स? ओके, तो इंपल्स का डायमेंशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, मतलब इंपल्स इज इक्वल टू मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। और इंपल्स क्या होता है? फोर्स बाय टाइम। तो दोनों का डायमेंशन सेम होता है, एम एल टी टू द पावर -1। तो ऐसा नहीं एक्सप्रेशन चाहिए हम लोग को। एक्सप्रेशन कैसा चाहिए? अगर ऐसा हो, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, बट फॉर एग्जांपल हमारा ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट होना चाहिए जैसे पावर 2 गामा टू द पावर 1 v टू द पावर 3, ऐसा हो जाना चाहिए इसका एक्सप्रेशन। ऐसे समझ लो -1, ऐसा एक्सप्रेशन हो जाना। दैट मीन्स वी हैव टू रिप्लेस एम एल टी बाई रो म्यू एंड वी वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ये एडवांस नीट में भी पूछा जाता है। इसका करने का अप्रोच क्या है? पहले रो इज डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, एम एल टी टू द पावर एम एल टू द पावर -3। वेलोसिटी एल टी टू द पावर -1। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम। अब देखो हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एल एम। तो अगर टी का वैल्यू फाइंड करना है तो चालू करते हैं सबसे छोटा डायमेंशन, इसमें एक ही है, तो टी इक्वल टू म्यू, नीचे आएगा तो म्यू टू द पावर -1। दिस इज द फर्स्ट। तो टाइम के जगह में हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे? एम मिला नहीं है, एल मिला नहीं है, टाइम का वैल्यू आ गया म्यू टू द पावर -1 होल टू द पावर 1। अच्छा, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, छोड़ो बाद में करते हैं। सो वी हैव यूज दिस, इसको हटा देते हैं। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ म्यू ओवर हियर। अगर यहां पर म्यू का वैल्यू अगर पुट करेंगे, टी टू द पावर -1, टी टू द पावर -1 का वैल्यू है म्यू टू द पावर -1, माइनस माइनस पावर विल बी प्लस, वी इक्वल टू एल म्यू। तो म्यू को अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो एल इक्वल टू वी बाई म्यू, वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी। तो मेरा एल का भी पावर आ गया। तो व्हाट इज एल? एल इज म्यू वी म्यू टू द पावर -1, ठीक है ना, म्यू टू द पावर -1। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ एल ओवर हियर। तो if you put the value of L over here, तो रो इक्वल टू m v to the power -3 mu to the power -3. If we cross multiply this, what we will get? Rho mu to the power -3 divided by v to the power -3 equal to m. तो ये v को अगर ऊपर लेके जाए तो फाइन, अगर नहीं लेके जाना है तो छोड़ दो। तो ऊपर अगर लेके जाएंगे तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन? रो, यहां पर ठीक से कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन? रो म्यू टू द पावर -3 v क्यूब इक्वल टू m. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मास. सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ m. m is rho म्यू टू द पावर -3 एंड v क्यूब, वेलोसिटी क्यूब. अब देखो ये -1 क्या हो जाएगा? +1 +1, ठीक है ना. चलो पावर को चेंज कर लेते हैं.
1। अब देखो +1 और -1 ये कट जाएगा ना, तो मेरा क्या रहेगा फाइनल, रो म्यू टू द पावर -3 v टू द पावर 4 वेलोसिटी टू द पावर 4। देखो दिस इज द डायमेंशंस। ऐसे करके अगर मुझे फोर्स का डायमेंशन पूछा तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज mlt टू द पावर -2। तो मुझे क्या करना है, m l और t का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ रो म्यू एंड v। इस तरह का मैं बहुत क्वेश्चन बना सकता हूं। तो ये सब क्वेश्चन एडवांस लेवल में आता है और ये सब क्वेश्चन में आपको फंडामेंटल यूनिट्स को रिप्लेस करके एक दूसरा ही यूनिट को फंडामेंटल यूनिट पकड़ के काम करना पड़ता है। तो हम लोग अभी तक 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं और 2 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बाकी है। तो देखो नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज एरर। Now, error have 2 type of sums. Number 1, if I give that a resistance R1 have some error and resistance R2 have some error, if I connected it in series connection, तो what will be the error, total error in the equivalent resistance? ऐसा क्वेश्चन। तो इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो समझ लो इसका 2 प्लस और माइनस, द एरर विल बी रिप्रेजेंट बाई प्लस और माइनस 0.2 ओहम, 4 प्लस और माइनस 0.1 ओहम। दैट मीन्स ये ओरिजिनल वैल्यू है। अब ये ओरिजिनल वैल्यू कैसा है, कैसे आता है, ये हम समझाएंगे। अनदर टाइप ऑफ एरर, वहां पर कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जैसे समझ लो v इक्वल टू रो, कुछ भी पकड़ लेते, रो a b टू द पावर क्यूब इंटू जी, ऐसा कुछ ले लिया, वेलोसिटी वॉल्यूम कुछ भी पकड़ लो, ऐसा दे दिया। मैं बताया रो a g और b में कुछ ना कुछ एरर है, परसेंटेज फॉर्म में दे सकता हूं एरर को, न्यूमेरिकल फॉर्म में दे सकता हूं। दैट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस, हियर देयर इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन एंड हियर देयर इज अ वेरिएबल एक्सप्रेशन। अब मैं बता रहा हूं इसमें एरर है तो वॉल्यूम में या वेलोसिटी जो भी पकड़े हैं इसमें टोटल एरर कैसा आना चाहिए। दिस आर द 2 टाइप ऑफ सम्स वी हैव टू डील विथ एंड द स्टैंडर्ड प्रोसीजर आर लाइक दैट। एरर में कभी भी एरर घटता नहीं है। आपको एक चीज याद रखना है, आप गलती कम लिखो या ज्यादा लिखो, आप गलती किए हो, जैसे कोई आंसर 4 है आप 3 लिखे हो या 5 लिखे हो, आप ईच एंड एवरी टाइम 1 का गलती किए हो। तो आप ऐसा प्लस और माइनस मतलब कम लिखना और ज्यादा लिखना, प्लस और माइनस का मतलब कम और ज्यादा लिखना। आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। प्लस और माइनस मीन्स नेगेटिव एरर एंड पॉजिटिव एरर। एरर कैन नॉट बी नेगेटिव इन साइन। माइनस एरर मीन्स समवन हैज रिटन द आंसर बिलो टू द ओरिजिनल आंसर, मतलब उससे कम लिखा हुआ है बस। लेकिन एरर कितना है, अगर एक कम लिखा है तो 1 इज द एरर, एक ज्यादा लिखा है तो वो भी 1 ही एरर है। जब मैं बता रहा हूं वहां पर प्लस और माइनस का इंट्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, खाली बता रहा हूं एक का एरर। एक अगर बताया तो द साइन विल बी पॉजिटिव। सो मैं बता रहा हूं लेंथ L इक्वल टू L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 इक्वल टू L4 इक्वल टू 5 ऑब्जर्वेशन। हम लोग यहां पर 3 ऑब्जर्वेशन करके लेते हैं। मैं बताया L का ऑब्जर्वेशन लिया हूं 2.61, 2.63, 2.64, 6 पकड़ लेते हैं, 2.66 यहां पर 4 पकड़ लेते हैं। चलो अब बताओ कि एक ही लेंथ है, आप ऑब्जर्वेशन डिफरेंट क्यों आ रहा है? तो अगर आप फिजिक्स प्रैक्टिकल में गए हो, स्क्रू गॉज से एक वायर का वॉल्यूम अगर निकाले हो, तो वहां पर आपको यह मालूम चलेगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज यू कैन फाइंड द डायमीटर। और वहां पर डायमीटर जब निकाल रहे थे तो बहुत सारा जैसे सर्कुलर स्केल और लीनियर स्केल का डिफरेंट वैल्यू आ रहा था, उससे डिफरेंट रीडिंग आ रहा था। वहां पर इंपॉर्टेंट बात यह था लीनियर स्केल का वैल्यू सेम था और सर्कुलर स्केल का वैल्यू डिफरेंट आ रहा था। उसमें जो मेन स्केल का रीडिंग जो है वो चेंज नहीं होता है, मतलब ये रेडियस का बात कर रहा हूं, नॉट लेंथ। रेडियस का मेन स्केल का रीडिंग सेम होता है, सर्कुलर स्केल का रीडिंग चेंज आ रहा है। एट दैट मोमेंट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द एवरेज एंड द एवरेज इज द एप्रोप्रिएट आंसर वी हैव टू कंसीडर। मतलब अगर लेंथ
नापना है, मैं स्केल से नाप रहा हूं, उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा आ रहा है। 5 ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि 6 ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं। तो बार बार डिफरेंट आने का मतलब क्या है, मुझे एवरेज लेना है, तो मैं ओरिजिनल वैल्यू का बहुत नजदीक आ जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड द एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ क्यों? अगर मैं ऑब्जर्वेशन में हूं, एक ही चीज बार बार ले रहा हूं, तो वी हैव टू टेक सेवरल ऑब्जर्वेशन एंड वी हैव टू कंसीडर द एवरेज एज द ओरिजिनल लेंथ। तो एवरेज L इक्वल टू, इसको ऐड करो 13, 1, 18, 19, 1, 6, 7, this divided by 3. This is the average length and it is known as the exact length. 7.93 divided by 3, 2 ja 6, 1 9, 6 ja 18, 1.0, 3 3 ja 9. तो 6.3 is our original value. ये हम लोग पकड़ लेंगे। 6.3 यहां पर रीडिंग भी आ सकता है, तो ऐसा जरूरत नहीं है रीडिंग में एग्जैक्ट आए, नहीं भी आ सकता है। तो अगर यहां पर कुछ रहता तो डरने वाला बात नहीं है। 6.3 इज आवर ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल लेंथ। देयरफॉर L इक्वल टू और एवरेज वैल्यू इक्वल टू 2.63 एंड दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। तो ये मालूम चल गया। अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब गलती कितना हुआ L1 निकालने में? डेल L1, डेल L1 मींस चेंज इन लेंथ 1, मेजरमेंट में कितना चेंज आया। तो पहले ओरिजिनल लेंथ 2.63 माइनस 2.64 माइनस 0.01 का गलती, ठीक है। डेल L2 इसमें क्या है, सेम ही है, तो अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आंसर 0 आएगा। डेल L3 तो 2.63 माइनस 2.66 इक्वल टू माइनस 0.03। अब देखो किसी किसी बुक में ऑब्जर्वेशन माइनस 2.63 लिखा जा सकता है। डू नॉट वरी, वहां पर प्लस साइन में आ जाएगा। एक्चुअली मैं चाह रहा था आपको मैं माइनस साइन से दिखाऊं, इसलिए मैं इसको पहले लिखा। एक्चुअली होता क्या है, ऑब्जर्वेशन माइनस ओरिजिनल लेंथ, वो तकलीफ वाला बात नहीं है। ये देखो मैंने क्वेश्चन खुद से क्रिएट किया, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं लिया जो माइनस में आए, और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है आपको माइनस का वैल्यू दिखाना, ठीक है ना। माइनस होने से क्या है, तो अगर इतना गलती है, गलती का एवरेज कितना होगा, दैट इज डेल्टा L इज माइनस 0.01। इसको लेना कितना है, 0.01 प्लस 0 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आया 0.04 डिवाइडेड बाई 3, तो ये लगभग 0.01 के बराबर आएगा। तो 4 को डिवाइड करेंगे 1.33, तो 1. ऐसा आएगा, ठीक है ना। 1.3 हम लोग 2 डेसिमल तक लेते हैं, तो ऐसा आएगा 0.01 का एरर। तो रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए, ओरिजिनल लेंथ प्लस और माइनस 0.01। दिस इज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ। तो लेंथ का एवरेज वैल्यू प्लस एरर कैसे निकाले, ईच एंड एवरी वैल्यू को एवरेज निकाले, गलती भी एवरेज निकाले। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, मुझे माइनस लेके काम करना था, आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना था। दैट मीन्स इफ देयर इज नेगेटिव एरर व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द एवरेज गलती, वी कंसीडर देम एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि गलती कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट पॉजिटिव। नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ। यहां पर एक एक करके क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द एवरेज लेंथ, ऐसे करके ऑब्जर्वेशन दे देगा, तो आप ऐड करके ये कर दो। अब व्हाट इज रिलेटिव एरर, व्हाट इज द रिलेटिव एरर, क्वेश्चन क्या आया, रिलेटिव एरर। व्हाट इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव का मतलब कंपेयर करना, ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक चीज को आप 10 रुपया में खरीदे हो और उसको ही 12 रुपया में सेल किया हो, ये तुम्हारा सीपी, ये तुम्हारा एसपी, तो सेलिंग प्राइस 12 हुआ,
अब आपका दिमाग में चल रहा है मुझे तो 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया है, तो कंपेयर आया कहां से? 10 रुपया से। वी हैव कंपेयर द प्रॉफिट टू, ऐसे भी बोल सकते हैं हमारा प्रॉफिट 12 है, तो ऐसा तो नहीं है ना। अगर कोई चीज 10 रुपया में खरीदा गया है तो इफ आई सेल इट फॉर 12 रुपीज, दैट मीन्स वी हैव मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2। तो द 2 नंबर को 10 से कंपेयर किया गया है, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो प्रॉफिट परसेंटेज आता था ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या है? प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कैसे है? 10 रुपया से कंपेयर करके आया। अगर 10 जगह में 8 होता तो 4 रुपया का प्रॉफिट होता, इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज। तो यही चीज हम लोग छोटा में भी किए थे, तो यहां पर किया। प्रॉफिट मतलब क्या? ज्यादा कुछ। एरर मतलब क्या? ज्यादा कुछ या कम कुछ। तो रिलेटिव एरर मींस वी हैव टू कंपेयर 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू 2.63। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1/263। दिस इज द रिलेटिव एरर। तो बहुत ही छोटा एरर है हम लोग का कैलकुलेशन में। अगर मुझे पूछे व्हाट इज द परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में क्या करना है? रिलेटिव एरर पहले बनाना है 263 इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज एरर जो सॉल्व किया जाएगा। ये बहुत ही छोटा आएगा, 0.045 ऐसा परसेंटेज आएगा, इतना परसेंटेज का एरर होगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 263 पॉइंट से 0 तो 4 कर देंगे तो लगभग इसके बराबर आ जाएगा। तो 0.4 परसेंटेज का एरर है, 0.4 परसेंटेज का हम लोग का एरर है। डन। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, अगर आपका वैल्यू दिया गया है, बहुत सारा वैल्यू, वहां से रिलेटिव एरर, आपका परसेंटेज एरर में क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई द रिलेटिव एरर बाई 100। ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो लास्ट टाइप ऑफ सम वी आर गोइंग टू डिल। अच्छा, चलो लास्ट टाइप ऑफ सम। पहले v इक्वल टू a टू द पावर 3, b टू द पावर 4, c टू द पावर 7। और मैं बताया a में 1% का गलती, b में 2% का गलती और c में 0.5% का गलती है। तो मुझे बताओ v में गलती कितना है? तो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू एडॉप्ट अ टेक्निक दैट इज v इक्वल टू, इसमें अगर गलती है तो डिफरेंशिएट करेंगे, डेल v बाई v, मतलब रिलेटिव एरर, v में रिलेटिव एरर। ठीक है ना? यहां पर अल्फाबेट कितना है? 1 2 3 4, तो 4 अल्फाबेट्स आर देयर, तो डेल v बाई v। अब a का रिलेटिव एरर डेल a बाई a, यहां पर क्या करना है? पावर सामने आ गया, प्लस पावर सामने लो, b का रिलेटिव एरर लिखो, प्लस पावर सामने लो, c का रिलेटिव एरर लिखो। अब इसका प्रूफ भी मैं कर सकता हूं। रिलेटिव एरर, आप देखो ये वाला चीज इजीली करो, क्योंकि ये प्रूफ पूछेगा भी नहीं, एक क्वेश्चन आएगा, इतना बात का बतंगड़ बनाना भी नहीं है, क्योंकि इसमें लॉग पकड़ के डिफरेंशिएट किया जाता है विदाउट एनी रेस्पेक्ट में। अगर आप देखना चाहो मैं इसके बाद दिखा दूंगा। तो डेल v बाई v, आप बताओगे क्या? जितना अल्फाबेट है उसका क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। अगर मुझे पूछे a का रिलेटिव एरर क्या है? a में गलती डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a का रिलेटिव एरर। b का रिलेटिव एरर, तो b का गलती डिवाइडेड बाय b। अब देखो मुझे एरर परसेंटेज में दिया गया है, तो हम लोग क्या बोले थे? रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से मल्टीप्लाई करके, मतलब बोथ साइड मल्टीप्लाइंग विथ 100, तो वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा परसेंटेज एरर। तो a में कितना गलती है? तो v में परसेंटेज एरर 3 इंटू 1% प्लस 4 इंटू
2% प्लस 7 इंटू 0.5%, तो 3 प्लस 8 11, 11 एंड 3.5, 11 एंड 3 इज 14.5, दैट मीन्स भी में 14.5 का एरर है, 14.5% का एरर है। तो दिस काइंड ऑफ सम बहुत इजी है, खाली आप अच्छा से सुनो, जितना अल्फाबेट है उतना बार रिलेटिव एरर निकालना है। अगर परसेंटेज एरर दिया है तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए बोथ साइड, तो इट कन्वर्ट इनटू परसेंटेज एरर। तब इसका परसेंटेज वैल्यू 1, इसका परसेंटेज वैल्यू 2, इसका परसेंटेज वैल्यू 5। तो कोएफिशिएंट याद रखना क्या होता है, पावर कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, इसको अगर आप प्रूफ देखना चाह रहे हो, मैं जल्दी से कर देता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आप कर चुके हो, एडवांस क्लासेस में आप लोग इन्वॉल्व हो, तो आप लोग को डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर कोई 12th का बच्चा देख रहा है तो ही कैन अंडरस्टैंड दैट इंटीग्रेशन के टाइम में अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, हम लोग z पकड़ते हैं, वहां पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज विदाउट एनी रेस्पेक्ट। तो यहां पर भी वही चीज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंसीडर लॉग, तो v इक्वल टू दिस, तो कंसीडरिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो लॉग हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। अब लॉग में क्या मजा है, अगर लॉग a इंटू बी रहा तो क्या हो जाता है, लॉग a प्लस लॉग b। अगर a डिवाइडेड बाई b रहा तो क्या बन जाता है, लॉग a माइनस लॉग b। मतलब जितना मल्टीप्लीकेशन उतना प्लस। और लॉग में खासियत क्या है, लॉग a टू द पावर अगर 7 है तो क्या करता है, पावर को वो सामने ले लेता है, लॉग है। ये लॉग का सिंपल कंसेप्ट है। तो लॉग भी लॉग a टू द पावर 3 मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, लॉग b टू द पावर 4, अब डिवाइड है माइनस है, लॉग c टू द पावर 7 एंड लॉग v। अब आपको मैं ये बता रहा हूं, इफ देयर इज नो एरर इन a b एंड c, तब ये चीज ठीक है। अगर इफ देयर इज एनी एरर, वी हैव टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एरर इन दिस इक्वेशन। दैट मीन्स इफ वी सब्सट्रैक्ट समथिंग, तो एरर, इस सी में भी एरर है तो सी का एरर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं और मैं बताऊं सी में एरर है और सामने सब्सट्रैक्शन है, तो क्या होगा, नेट एरर घट जाएगा। तो हम लोग कंसेप्ट क्या लगाएं, इफ देयर इज एनी एरर, उसको पॉजिटिव मानना चाहिए। तो ये खाली काम आप कर लो। अब log x का डिफरेंशिएशन log x मैं खाली ऐसे करके रख दूं, दैट मीन्स आई डू नॉट नो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब किसके रेस्पेक्ट में मतलब log में मेन वेरिएबल है कौन, मैं ये ही करने वाला हूं यहां पर। अच्छा, तो पहले ये करता हूं, d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, d ऑफ मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ log v इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log a। अच्छा, पावर क्या होता है, सामने आ जाता है ना, यहां पर पावर देखो, वो पावर आ गया सामने, प्लस 4 डिफरेंशिएशन ऑफ log b प्लस 7 पावर सामने आ जाएगा क्योंकि log का प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन ऑफ log c। अब देखो, अगर ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x और मेन वेरिएबल dx। ये इंटीग्रेशन के तरीका से, इंटीग्रेशन में जब हम लोग z पकड़ते हैं, अगर इससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं ओरिजिनल रूल बताता हूं। डिफरेंशिएशन विदाउट एनी रेस्पेक्ट इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विद द मेन वेरिएबल। हियर द मेन वेरिएबल इज x। log किसके ऊपर डिपेंड किया हुआ है, x, तो वी हैव टू पुट dx। अब dx तो था नहीं सम में, तो यहां पर dx पुट करना था। अब ddx ऑफ log s क्या होता है, 1/x इंटू dx। ये चीज वैसे आया। तो सिमिलरली क्या है, यहां पर इसको अगर डिफरेंशिएट करना है, मेन वेरिएबल इज dv, तो dv नहीं था, यहां पर dv या डेल्टा v, जो भी बताओ। अगर इसको a इज वेरिएबल तो dA इंटू dA, अगर b है तो db इंटू db इंटू dc इंटू dc। ये प्रूफ आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा।
ये चीज देख लो। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ v इज 1/v, 1/v इंटू डी वी। 3 इसका क्या होगा 1/a इंटू डी ए, प्लस 4 1/b इंटू डी बी। ये पोर्शन यूटिलाइजेशन में आ रहा है। अच्छा 7 1/c इंटू डी सी। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम देखो क्या है, यहां पर डीसी को हम लोग डेल्टा वी बाई वी लिखे थे ना, डेल्टा वी बाई वी, वही एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी को हम यहां पर स्मॉल डी से, ये आपको बाद में मालूम चल जाएगा, दीज आर द सेम थिंग्स। तो 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 4 डेल्टा बी बाई बी प्लस 7 डेल्टा सी बाई सी। देखो ये चीज हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बोल रहे थे, सीख लो। तो यहां पर क्या बता रहे थे, डायरेक्ट लॉग जब नहीं पकड़े थे तो हम लोग क्या बोले थे, कंपेयर करो, इसको थोड़ा कंपेयर कर लो। तो ओरिजिनल मेथड आपके सामने में रखा हुआ है। एंड व्हाट वी हैव सेड, इफ देयर इज 4 वेरिएबल, 4 बार रिलेटिव एरर लो। v का रिलेटिव एरर डेल v बाई वी इक्वल टू a का क्या करना है, पावर सामने डेल a बाई ए प्लस 4 डेल b बाई बी प्लस 7 डेल c बाई सी। हर कुछ प्लस में आएगा। देखो लास्ट लाइन सेम है ना। सो विद द यूज ऑफ लॉगरिथम वी हैव टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। तो लॉगरिथम वाला चीज आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये प्रूफ जस्ट फैंटेसी के लिए मैं दिखाया आपको ये चीज याद रखना है। अगर परसेंटेज फॉर्म में एरर दिया हुआ है तो आप 100 कर दो, हो गया, बात खत्म। नाउ लास्ट न्यूमेरिकल करके हम छोड़ेंगे। देखो इफ द एरर इज इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक्स, दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस वाला दिखाए थे वैसा अगर है तो क्या होगा। तो रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 0.2 ओहम, R2 इक्वल टू 4 प्लस एंड माइनस 0.1 ओहम। इफ इट कनेक्ट इन सीरीज तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अब देखो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें आपको ओरिजिनल वैल्यू को ऐड तो करना ही पड़ेगा, दैट इज 4 प्लस 2 दैट इज 6, सॉरी। अब देखो गलती है, गलती हर टाइम प्लस ही होता है, तो प्लस और माइनस साइन जस्ट दिखावे के लिए वी हैव टू ऐड द एरर 0.3 ओहम। डन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ये चीज पैरेलल में कनेक्ट होता तो पैरेलल वाला होता है एक्सेप्शन। अब देखो क्यों एक्सेप्शन, मैं आपको डिफरेंशिएशन रूल बताया, मैं आपको कोई भी चीज रटने को नहीं बोलूंगा, एक बार उसका ओरिजिनल प्रूफ भी दिखाऊंगा। आफ्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू द ट्रिक। अब देखो अगर 1/x का डिफरेंशिएशन हुआ विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, ddx ऑफ x टू द पावर -1। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर एक घटता है, पावर सामने आता है, तो पावर सामने आएगा -1 और x टू द पावर -1 दैट विल बी माइनस x टू द पावर -2 दैट इज -1/x², -1/x²। तो देखो ये चीज याद रखो, 1/x² डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसको पैरेलली कनेक्ट किया, r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, इफ आई डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन का रूल एक बार दिखाया, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा 1/r² इंटू डेल r। ठीक है ना। तो यहां पर वो कंसेप्ट नहीं आएगा, r है तो r का रिलेटिव एरर लिख दो, वैसा नहीं। तो डेल r1 बाई r1² प्लस डेल r2 बाई r2², ये चीज होगा। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यहां पर पूछ सकता है व्हाट इज द एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, इसमें R1 का वैल्यू कितना है, डेल R1 इतना, R1 का वैल्यू इतना है, चलो ये चीज तो आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। अच्छा प्लस
इसमें गलती कितना है 0.1, दैट इज 4 स्क्वायर। बट द प्रॉब्लम इज मुझे अगर इसको रिलेटिव एरर फॉर्मेट में रखना है तो मुझे यहां पर r एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा r स्क्वायर। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r। तो इसको निकालने के टाइम में हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करेंगे। ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड होता तो 1/2 + 1/4 होता, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता 3/4। तो r का वैल्यू कितना होता 4/3। डन। तो ये 4/3 यहां पर बिठा देना है, ये 4/3 यहां पर बिठा देना है और इसको कैलकुलेशन करके रिलेटिव एरर आ जाएगा। रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। फिर अगर r को यहां पर कर देंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, तो एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल केस वो भी आ जाएगा। तो जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कैलकुलेशन कर लो। और दिस टाइप ऑफ सम्स आर वेरी इजी एंड द डायमेंशन एनालिसिस से आपको ये मालूम चलेगा 2 से 3 नंबर, हार्डली 4 नंबर आपको फाइनल में पूछा जाएगा। एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर नीट एंड जेई में एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं। वी हैव कंप्लीटेड दिस टोटल एंटायर थिंग इन 2 वीडियोस, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस मत करो, जितना टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स में आपको दिखा दिया हूं दैट इज सफिशिएंटली इनफ। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यूज एसएल अरोरा वहां पर, या आपका अगर खुद बुक है कुछ वो पढ़ो, दैट विल बी फाइन। थैंक यू।